Hello everyone. Once again, welcome to the English class. Dear student, we have a short break, but never mind. We'll start our class today. First of all, I like to say that the difference between a successful person and others is not the lack of knowledge or not the lack of strength, but rather a lack of determination, that is will. It's a lack of great determination. You can say that it's a will to do. हम लोग ये जो अभी मैंने पढ़ा अथवा जो मैंने अभी बोला, it is a very good group of sentences that emphasize, that gives the importance of determination. एक दृढ़ संकल्प का एक महत्व हम लोगों के अंदर में होना चाहिए और इसका जो असर इम्पोर्टेंट होता है, it is very useful to build our success. Now, in our story, as we have learned a part before, that Nani was a stammering boy. वो हकलाने वाला लड़का था. वो जो भी बोलते थे लेकिन वो हकलाते हुए कहते थे. So that was his weakness. But even though he is willing to take part in the elocution competition, speech competition, because of his great determination, because of his willingness, because he has a great desire to have an experience over the speech competition. The other thing is that it was an extempore. We can say that it was just like we give surprise test in the class. हम लोग surprise test देते हैं, वैसा ही the student can prepare themselves, and at the time of competition they will be given different topics to choose. So that is why the Nani was also interested, because he had got lots of information inside his mind. As he was a very good student in the class, so he knew that he could do it. Beyond his habit, weak habit, he got victory. Though it was not a great victory, but somehow he got the love from others for his speech because of his great determination. So in this way the story is going on. Now let us move. Last time what we have read, that when Nani thinks, or when Nani is stubborn to fulfill his desire of speaking before the mass of people for 5 minutes, no one was there to block him. Even his father, when he told his father didn't discourage him. Instead, he said, it is very good to take part in the competition. But father asked him, which topics are you going to choose? पापा ने डिस्करेज नहीं किया, क्योंकि नानी का जो था मेंबर था फैमिली में, they were all the person who encouraged other people in their weak time अथवा in their difficulties. So especially नानी को तो वो लोग हर टाइम इनकरेज करता रहता था. So पापा ने भी या नानी को बहुत अच्छा तरीके से इन्फोसाइज किया. उसने ये नहीं कहा अरे तुम हकलाते हो, तुम क्यों भाग ले रहे हो, तुम बोल नहीं पाओगे. इस किस्म से उसका जो मनोबल को कम नहीं किया,
लेकिन हाँ माँ पापा ने और बढ़ाया कि अरे बाप रे कौन सा टॉपिक में बोल रहे हो, ये तो बहुत अच्छा। सो इन दिस वे ही गॉट इनकरेज्ड। तो पापा ने टॉपिक्स पूछा। तो आफ्टर दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर। दिस इज योर paragraphs, lots of paragraphs that we have to learn today. This is next paragraphs. Now let us go paragraph by paragraph so that you may understand it very well. Now when his papa asked him for the topics what he was going to speak, at that time Nani gives this reply, I don't know, it's going to be extempore. नानी spoke without any stammer this time. इस टाइम जब नानी ने आंसर दिया पापा को तो वो हकलाया नहीं था। एंड इट इज़ आई सेड बिफोर ऑल्सो, नानी का बिहेवियर हकलाने का था, लेकिन फॉर एवरी इंस्टेंट वो हकलाते नहीं था। कभी कभी थोड़ा सा बड़ा सा अक्षर, बड़ा सा सेंटेंस बोलने में, बड़ा सा वर्ड को प्रोनाउंस करने में, अथवा कुछ हद तक वो हकलाते थे एवरी टाइम, but sometime he used to speak the sentences very properly. This time also जब ही नानी ने आंसर दिया पापा को तो वो हकलाया नहीं था। Oh, I completely forgot. One of our regular customers, the old Mrs. Dastur, had come to the shop today. She said that by rolling several marbles in one's mouth as one tugged, one could get over the stammer. Why not try that, Nani? यहाँ पे पापा ने, जब ये पापा और बेटे का कन्वर्सेशन चल रहा था, उसी टाइम उसने उसका दिमाग में एक बात याद आया कि नानी को बोला, अरे मैंने पुराना मेरा ग्राहक कस्टमर मिला था जब मैं दुकान में था, उसका जिसका नाम था मिसेस दस्तूर। एंड शी गेव एन आइडिया, शी गेव एन एडवाइस ऑन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ नानी का जो प्रॉब्लम था उसके बारे में एक सजेशन दिया था। उस सजेशन के मुताबिक नानी को सेवरल मार्बल्स तो यू नो एवरीबॉडी दैट यू प्ले अ राउंड स्मॉल फिगर, यू प्ले ऑन द ग्राउंड, तो उसको मुंह पे रख के थोड़ा बोलने का प्रैक्टिस करना है। सो इफ़ ही डज दिस फॉर 1 or 2 टाइम अथवा कीप ऑन ट्राइंग, देन हिज weakness will be improved. In this way he got an advice. And ये नानी को उसने भी सलाह किया नानी से, और नानी क्यों तुम इसको ट्राई नहीं करते हो, पापा ने नानी को भी पूछा। Now let us see what happened. Yes papa, I will, maybe tonight itself, who knows, it would help me tomorrow. अच्छा, बहुत अच्छा है पापा ये आइडिया, मैं आज ही का रात में ट्राई करूँगा, शायद ये कोशिश मेरा कल मुझे हेल्प करेगा कंपटीशन में। ओके, ऐसे करके नानी ने रिप्लाई दिया पापा को, डू यू वांट मी टू सिट विथ यू वाइल यू ट्राई आउट सम स्पीचेस, आई कुड टाइम यू, ऑफर्ड हिज एल्डर सिस्टर एमी। नो वन इन द पालकीवाला फैमिली डिस्करेज नानी और अदर चिल्ड्रन इन देयर endeavors. They were a close family and stood by each other's endeavor. Difficult times. जब वो लोग डिफ़िकल्ट टाइम से इफ़ेक्टिव अथवा हार्ड वर्क कर रहा है, उस टाइम पे नानी का फैमिली में ये नहीं था कि किसी को डिस्करेज करे, स्पेशली तो नानी को डिस्करेज नहीं करते थे। नाउ यहाँ पे जब ये बातें हो रहा था तो एमी, नानी का बड़ी बहन ने कहा, जब तुम स्पीच करते हो मैं तुम्हारा सामने रहूँगा, एंड आई विल नोटिस योर स्पीच, आई विल हियर योर नोटिस, एंड आई विल सी द टाइम हाउ मच यू आर टेकिंग। मैं तुम्हारा सहायक बनूँगा और समय देखूँगा। इस करके वो अपने भाई को डिस्करेज नहीं, इनकरेज करना चाहता था, इनकरेज कर रहा था। सो नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट पैराग्राफ। Nani practiced with Amy that night and was able to speak with just a little bit of stuttering. You will do well, she said encouragingly. Nani was grateful for her encouragement. अब नानी जब अपने बहन के आगे, बड़े बहन के आगे स्पीच कहा तो इट वॉज गुड,
वो रात में जो प्रैक्टिसेस किया इट वाज गुड बिकॉज स्टॉटरिंग, हड़बड़ाना, उस टाइम जो स्पीचेस दिया उसने ट्राई किया उस टाइम पे तो वो स्टैमरिंग थोड़ा कम किया था, हकलाना जो हैबिट था उसका जो थोड़ा कम हुआ था। और उसका बहन ने कहा अरे नानी यू आर गुड, यू आर इम्प्रूविंग, यू कैन डू मोर देन दिस, ऐसे करके अपने भाई को क्या किया, प्रेरित किया। He encouraged her brother. Now let us go. The next day in school, the hall was full. There was a choice of subjects and Nani chose. Try and try, you will succeed. He spoke very well, stressing that if a person try hard enough, he could do anything. Now यहाँ पे दूसरे दिन जब स्कूल गया तो it was full of students, full of competitors who were take participants. उन लोगों को सब्जेक्ट दिया चूज़ करने के लिए टीचर ने, तो नानी को मिला ट्राई एंड यू विल सक्सेड। कोशिश करते रहो, हिम्मत मत हारना है, होपलेस नहीं होना है, एंड देन यू विल गेट सक्सेड। एंड इट वाज अ सिंबल फॉर नानी ऑल्सो। नानी को लिए एक सिंबॉलिक पॉइंट आउट भी था। यहाँ पे नानी एक ये सक्सेड अथवा जो ट्राई स्ट्रेसिंग दैट इफ अ पर्सन, नानी ने एक जोड़ देकर बोला कि अगर कोई भी आदमी बहुत अच्छा मेहनत करेगा, एकदम दृढ़ संकल्प लेकर उस पर परिश्रम करेगा, तो वो आदमी क्या करेगा, जीवन में सफलता मिलेगा उसको। ऐसे करके वो बहुत स्ट्रेस देके वो स्पीच कहा। एंड इट वॉज अ सिम्बॉलिक फॉर हिम ऑल्सो। ये सिम्बॉलिक भी था, नानी भी यहाँ ट्राई कर रहा था एंड ही वांट्स टू गेट द सक्सेस। नाउ he stammered a bit in the beginning, but as he spoke, he became more confident. शुरू में जो थोड़ा बहुत स्टैमरिंग हकलाया था, लेकिन उसके बाद में वो मोर कॉन्फिडेंट, उसके अंदर में एक साहस भरा, उसको आत्मविश्वास हुआ। अब नाउ लेट अस से आत्मविश्वास, बोलने में आत्मविश्वास हो गया, कॉन्फिडेंट। देयर वाज अ मोमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन फॉर हिम व्हेन ही गॉट स्टक ऑन द वर्ड perseverance, but he didn't give up and concluded his speech to resounding applause. Nani had just given his first public speech. Now here, dear student, confident, हम लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हम लोगों के अंदर में डिटर्मिनेशन होना चाहिए, उसके बाद कॉन्फिडेंट कि ये काम मैं पूरा कर सकता हूँ। अगर कोई इंसान के आगे बड़े से बड़े पहाड़ आएगा और वो सोचेगा अरे ये बहुत बड़ा है, मैं कर नहीं सकूँगा, तो इंसान वहीं के वहीं रह जाएगा। अगर कोशिश करेगा तो कम से कम अगर वो सक्सेस भी नहीं हासिल होगा तो वो उसको एक्सपीरियंस, अनुभव मिलेगा, और वो कम से कम मिडल तक पहुंचने का जो अनुभव है वो बहुत सुखमय होता है। चाहे वो सुमित तक, वो लास्ट एंडिंग तक ना पहुंच पाए, फिर भी उसका कोशिश के कारण वो 20 तक पहुँचे, फिर भी उसके पास में इतना अनुभव होता है, इतना एक्सपीरियंस होता है, जिस एक्सपीरियंस की वजह से ही विल बी हैप्पी। सो आदमी को ट्राई करना छोड़ना नहीं है, अरे ये बहुत बड़ा है, ये कर नहीं सकूँगा, आई कैन नॉट डू दिस, ऐसे करके जो नकारात्मक नेगेटिव फीलिंग्स जब स्टेट ऑफ माइंड में पड़ जाता है तो आदमी वीक हो जाता है। हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, अगर ये आदमी के अंदर में एक स्टेट ऑफ माइंड में ये रह जाएगा तो वो जितना भी बड़े काम को वो छोटा देखेगा उस टाइम पे, और वो ट्राई करेगा और उसको ओवरकम करके वो अपना ओवरकम करके ही छोड़ेगा। हम लोग अगर इंसान इस दुनिया में अगर वही सोचता रहता तो आज हम लोग चंद्रमा, द मून, वी कुड नॉट हैव ट्रैवल टू मून। सो डियर स्टूडेंट, एज द टाइम इज पासिंग, द डेज आर स्पेंडिंग, द आवर्स आर पासिंग, everything is developing, everything is advanced in this today's world. So we must do something new, we must become unique for others, so that we will be appreciated later on by all of them.
So dear student, for that we need to have the good state of mind. That means positive state of mind. So now यहाँ पे नानी भी जब शुरू में किया तो उसके हकलाने का शुरू, उसका वीकनेस आया, लेकिन उसके बाद में उसके अंदर में कॉन्फिडेंट, एक पावर आ गया, शक्ति आ गया, और वो कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं बोल सकता हूँ। इसके बाद में वो बोलते रहा। लेकिन जब परसिवरेंस, ये जो वर्ड आया, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उसको थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि ये वर्ड डिफ़िकल्ट भी है प्रोनाउंस करने के लिए, वैसे भी नानी हकलाते थे। सो एट द टाइम ही गॉट सम काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन एट दैट टाइम, लेकिन फिर भी उसने उसको कवर अप करके उसने स्पीच को कंक्लूड एंड कर दिया विथ अ रिसाउंडिंग अप्लॉज। रिसाउंडिंग अप्लॉज का मतलब बड़ा जोरदार ताली से सब पीपल उसका स्पीच सुन के सब ने उसको क्या किया, जोरदार तालियां दे दिया। यहाँ पर परसिवरेंस का मतलब होता है थ्रेट, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है संकल्प। परसिवरेंस एंड डिटर्मिनेशन, इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू गेट सक्सेस इन लाइफ। दृढ़ निश्चय, एक जिद्दी निश्चय, जिद्दी संकल्प, वो हम लोगों को होना चाहिए। सो यहाँ पर नानी ने भी स्पीच अच्छी तरह से ही किया, और लास्ट में सब क्राउड ने उसको रिसाउंडिंग अप्लाउज, एक हाईली एक क्लैपिंग के साथ उसको स्वागत किया, उसका स्पीच को। नानी हैड जस्ट गिवन हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच, ये नानी का पहला था पब्लिक स्पीच। नाउ लेट अस से his speech that day didn't win him a prize, but got him a special mention from the principal who had presided over the competition. I am sure Nani will do very well if he followed that he talked about today, he said while commenting on his performance to the 10-year-old boy. This was highly encouraging. यहाँ एक 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चे के लिए ये क्या था, बहुत 10 साल का बच्चे के लिए ये बहुत इनकरेजिंग था। जब ये स्पीच कंपटीशन हो रहा है, वहाँ पे प्रिंसिपल तो होगा ही, डायरेक्टर सर अथवा मैम अथवा कोई गेस्ट टू इवैल्यूएट द कंपटीशन, टू गिव मार्क्स टू द कंपटीशन, ये वो लोग होता है। सो ही वॉज ऑल्सो प्रिसाइडेड, ही ऑल्सो प्रिसाइड, द प्रिंसिपल हियर ऑल्सो प्रिसाइडेड ओवर द कंपटीशन। कंपटीशन में एक प्रिंसिपल, वहाँ प्रिंसिपल मौजूद था, उसने नानी को स्पेशल मेंशन किया, नानी को एक विशेष तरीके से उसको संबोधित किया, और उसने ये भी कहा नानी अगर ऐसा ही कोशिश करता रहेगा तो एक दिन क्या होगा, यू विल बी सक्सेस इन हिज गुड स्पीच। वो ये कमेंट किया, उसने नानी का जो परफॉर्मेंस था उसके ऊपर कमेंटिंग किया। नानी ने दो ये कंपटीशन में प्राइज़ नहीं मिला, लेकिन उसको प्रिंसिपल के थ्रू से उसको एक इनकरेज मिला। सो ये एक 10 साल के बच्चे के लिए बहुत बड़ा था। सो इन दिस वे नानी हैड अ फर्स्ट स्पीच, पब्लिक स्पीच। इट इज़ रिटन बाय, दिस इज़ आवर लास्ट पैराग्राफ, एंड दिस इज़ रिटन बाय Thangamani, and I will be reading about him afterwards. Dear student, in this lesson I just do all the remaining difficult words, remaining part of the difficult words, and I found and I have seen your performance in the classroom app, your submission, and it somehow it is good. But dear student, there is a less number of you. Just increase the number and do all the activities that I am giving. Now you can do this remaining part of difficult words. Now let us move to our other exercises of the book. This is about the author. Let me read about author.
Thangamani has written Children Who Made It Big, a book which aims to bring out the fact that greatness is achieved through determination and perseverance. It is possible for anyone to scale great heights provided one has these two qualities. ये परसिवरेंस एंड डिटर्मिनेशन आदमी के में ये दो क्वालिटी होना चाहिए सक्सेस पाने के लिए। इसी संदर्भ में ये थंगामनी ने ये चिल्ड्रेन हु मेड इट बिग ये किताब लिखा है। इफ़ यू कैन फाइंड इट यू कैन रीड दिस बुक, इट इज़ वेरी इनकरेजिंग बुक। सो थंगामनी के बारे में हम लोग बाद में भी हम लोग कर सकते हैं। I'll give you some information about him. Let us see the vocabulary: elocution, sniggers, extempore, collated, endeavor. अब यहाँ पे जो वर्ड है, try to spell it properly. Spell it properly, pronounce it properly, learn the spelling, and learn the word meaning. That is your work. Now let us move to our MCQ. Sir, these two will be your today's work, especially to collect difficult words from the lesson. Second, if you can write something about Thangamani, you can have a practice over it. And third, vocabulary. You should learn it very carefully. You learn the word meaning properly, and you will know, you will be able to have more information on this. Now, dear student, this much for today. Let's meet in the next class. Till then, have a nice time. Have a nice time. Thank you and bye.